Good evening to everyone. In this lecture, you will learn about the experimental setup and experimental results of the photoelectric effect. And in this photoelectric effect, we have defined this effect that as whenever we incident a sufficient high frequency radiations on the surface of metal, then electrons are emitted from that surface. And this phenomena is called the photoelectric effect, and the electrons are called photoelectron. And if we allow these electrons to flow through a wire and collected by an electrode, then the current flows through wire is called the photocurrent. तो सेम द पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी, इन चार पैरामीटर्स जो हमारे पास है उनके रिगार्डिंग हम कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को आज डिस्कस करेंगे. And before that we discuss about the experimental setup. So this is the experimental setup for the study of photoelectric effect or to obtain the various curves of the photoelectric effect. And in this particular setup we have taken a large glass tube which is evacuated, means a vacuum is created inside it, and all airs are extracted with the help of some vacuum pump or the pump. Okay, so this is the evacuated glass tube in which we attach two electrodes. First one is the cathode, C means cathode here, and the second one is the anode. And by default the cathode is having negative potential with respect to anode, or we can say the anode is at positive potential with respect to cathode. Clear? A quartz window is also provided here, which is allowed to pass the electromagnetic radiation and incident on this cathode. क्लियर? तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होंगी दे आर इंसिडेंट ऑन दिस कैथोड थ्रू दिस क्वार्ट्ज विंडो. ये जो ग्लास होता है रिमेनिंग ये थोड़ा थिक होता है, तो वहां से अल्फा ये जो रेडिएशंस हैं उनकी इंटेंसिटी चेंज हो जाती है, कुछ एब्जॉर्ब कर लेती है वो ग्लास. सो इसलिए हम क्वार्ट्ज विंडो यहाँ प्रोवाइड करते हैं जिससे कि रेडिएशन जो है वो प्रॉपर इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी की हम इंसिडेंट कर सकें ऑन द कैथोड. The cathode and anode are connected with this two-way key. This is the two-way key. With the help of this, we can make this anode positive or negative with respect to cathode. Clear? So अभी मैंने जो यहाँ अरेंजमेंट किया है वो एनोड पॉजिटिव का किया है. तो इसमें क्या होगा देखो, in this case this terminal is connected to this one and this one is connected to this one. अमीटर माइक्रो एम्पियर की रीडिंग वो मेजर करेगा बिकॉज हियर द करंट produces due to the photoelectron, or we can say the photocurrent is not much large of order milliampere or ampere, so it is having the small order, and to measure that current we use this microammeter. A voltmeter is attached parallel to this anode and cathode. एक्चुअल में ये पैरेलल में कनेक्ट है. देखो ये टर्मिनल एनोड से आ रहा है तो ये एनोड पोटेंशियल पर होगा, और ये कैथोड से आ रहा है तो ये कैथोड के पोटेंशियल पर होगा. तो वोल्टेज ये जो मेजर कर रहे हैं ना हम, ये एनोड और कैथोड के बीच में ही है. करंट इस सर्किट में फ्लो होने वाली जो इस लूप में या यहाँ एनोड और कैथोड के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट मिलेगी वो करंट है यहाँ पर, जिसको हम फोटो करंट कहेंगे, और वो इस माइक्रोमीटर में फ्लो होगी. क्लियर? Similarly, a rheostat is used here as a potential divider. It is just divide the total applied potential by the help of this battery. ये जो बैटरी हमने लगाई है, सपोज करो कि ये बैटरी 100 वोल्ट की है, तो 0 से लेके 100 वोल्ट तक हम पोटेंशियल रिक्वायर्ड पोटेंशियल ले सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं अक्रॉस दिस एनोड एंड कैथोड विद द हेल्प ऑफ दिस रियोस्टेट. And that's why it is called potential divider. It will divide the total applied potential. एक रियोस्टेट का यूज होता है एज करंट कंट्रोलर, जैसे हम पोटेंशियोमीटर में उसको कनेक्ट करते हैं या किसी भी सर्किट में कनेक्ट करते हैं एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, बट हियर वी आर कनेक्टिंग इट एज अ वोल्टेज डिवाइडर. सॉरी, एक होता है करंट डिवाइडर, एक होता है वोल्टेज डिवाइडर. यहाँ हमने वोल्टेज डिवाइडर की फॉर्म में इसको यूज लिया है. कहीं पर ये करंट कंट्रोलर या करंट को चेंज करने में यूज आता है. यहाँ करंट चेंज नहीं करेगा, यहाँ वोल्टेज को चेंज करेगा. तो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप. अब इस टू वे की को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, जस्ट वेट.
ये जो टू वे की है यहाँ पर, अगर ये जो टर्मिनल्स मैंने यहाँ शो किए, सपोज इन टर्मिनल्स को मैं ऐसे क्रॉस में कनेक्ट करता, if we connect this these terminals of this two way key like this, then what will happen, then in this case the anode becomes negative and the cathode will becomes positive. वोल्टेज को ऑल्टर करने के लिए, पोलरिटी को चेंज करने के लिए वी यूज दिस टू वे की. This key is used to change the polarity of the potentials at anode and cathode. और जो हम ग्राफ यहाँ बनाएंगे, जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी हम करेंगे इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की, वहाँ हमें वोल्टेज को चेंज भी करना पड़ेगा. क्लियर? सो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप एंड I will explain with the help of this experimental setup all the results as well as its we can say experimental results को हम पहले लिखेंगे और उसके बाद उनको हम एक्सप्लेन भी करेंगे. तो ये जो सर्किट है इसका थोड़ा सा अपने माइंड में रखना कि क्या है. कैथोड उस साइड में लेफ्ट में और एनोड इस साइड में. एनोड को हम बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव करते हैं बट इसका वोल्टेज हम नेगेटिव भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस की. नाउ द नेक्स्ट थिंग, इसी को एक थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देते हैं. This experimental setup consists of two electrodes, cathode and anode and cathode A and C. ठीक है, एनोड को ए लिख रहे हैं, कैथोड को सी लिख रहे हैं. ए एंड सी प्लेस्ड इन अ ग्लास ट्यूब विच इज इवैक्यूएटेड, यानी इस ग्लास ट्यूब के अंदर इसको हम प्लेस कर देते. क्लियर? देन a quartz window provided for incidence of electromagnetic radiation. ठीक है, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है या एक्स रेज है या विजिबल रेज है, उनको हम यहाँ पर इंसिडेंट करने के लिए इस पर विंडो एक प्रोवाइड कर देते हैं विच इज मेड बाय द क्वार्ट्ज. A two-way key voltmeter, ammeter या microammeter, then rheostat, battery and key are connected as shown. ठीक है, जितना मिनिमम हम इंट्रोडक्शन लिखे हैं उतना ठीक है, बस 2 पैराग्राफ में हमने इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया. नो नीड टू एक्सप्लेन दिस कंप्लीटली. एक एक पार्ट को एक्सप्लेन नहीं करना. वोल्टेज कनेक्टेड इन पैरेलल और एमीटर कनेक्टेड इन सीरीज और रियोस्टेट यूज एज अ वोल्टेज डिवाइडर. नो नीड टू एक्सप्लेन दिस, बट ध्यान रखना कि इस तरह से होता है. और ये एक चीज ध्यान रखना कि टू वे की जो है उससे हम वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं. क्लियर? जैसे ये कनेक्शन किया तो एनोड पॉजिटिव होगा और ये कनेक्शन किया तो एनोड नेगेटिव होगा. क्लियर? सो अब हम इसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स की बात करेंगे. सो नोट डाउन दिस वन, टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट. One more thing, that in case of the metals like sodium, potassium, lithium, etc., the electromagnetic radiation is required for photoelectric emission is starts from the visible range. यानी लाइट के प्रेजेंस में भी इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करा सकते हैं हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंडर में फ्रॉम द सोडियम, लिथियम, पोटेशियम एटसेट्रा. और जब हम एक हार्ड मेटल की लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम इनकी बात करते हैं तो ये अल्ट्रावायलेट से इनको हम इमिट करा सकते हैं. यानी अल्ट्रावायलेट से हायर, अल्ट्रावायलेट एंड हायर देन अल्ट्रावायलेट. ओके, और अगर कोई मेटल का ब्लॉक है
तो फॉर द ब्लॉक ऑफ मेटल एक्स रेज आर सफिशिएंट टू एक्सट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दैट मेटल। ओके, सो ये ध्यान रखना थोड़ा सा कि विजिबल से हम यानी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो रिक्वायर्ड होती है उसको हम विजिबल रेंज से ले सकते हैं। इंफ्रारेड पे नहीं होगा, माइक्रोवेव पे नहीं होगा, रेडियो वेव्स पर नहीं होगा। क्लियर, विजिबल, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट और गामा रेडिएशन, बट गामा तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, एक्स रेज से ही हम मेटल ब्लॉक से भी इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करा सकते हैं। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ये इंट्रोडक्शन में आप इसको भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। क्लियर, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। Experimental results. So what are the experimental results of this photoelectric effect? अब जब भी हम experimental results की बात करते हैं तो 4 things we can change and we can kept constant. The first one is the intensity of the radiation, second is the frequency of the radiation, third one is the voltage applied between the anode and cathode, and fourth one is the photocurrent. तो इन 4 में से हम किसी को कांस्टेंट रखेंगे, किसी को वेरिएबल करेंगे और फिर इसके रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर, तो इवन हम एक डायग्राम ऐसा बनाएंगे जिसमें हम डिफरेंट मेटल्स अगर लेते हैं तो उसमें किस तरह से वेरिएशंस आते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ में, वो भी हम डील करेंगे। यानी इस कैथोड का अगर मेटल वेरी कर दे, मेटल चेंज कर दे तो किस तरह से इसमें चेंजेस आते हैं। बट हम मेन यहाँ पे पॉइंट जो कंसिडर करते हैं वो कौन कौन से है, देखो एक तो है frequency of the radiation, frequency of the radiation. Second point is intensity of radiation. The third point is C is the potential difference between electrodes या A and C, potential difference between anode and cathode, and the fourth one is D point, photocurrent. So these 4 things we can vary or we can change to understand or to draw the experimental results of this photoelectric effect. So first one we are taking the photocurrent versus intensity of radiation. फोटोकरंट वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। देखो वोल्टेज और करंट से तो हम फैमिलियर हैं क्योंकि हमने फर्स्ट सेकंड चैप्टर में या थर्ड चैप्टर में, सेकंड में हमने पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया था, थर्ड में हमने करंट को डिफाइन किया था। ओके, तो हमें पता है वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होती है, उसको हम वेरी कैसे कर रहे हैं, कांस्टेंट कैसे रखना है। क्लियर, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के बारे में भी हमें पता है। इंटेंसिटी चेंज करने का मतलब उसकी एक तरह से ब्राइटनेस को चेंज करना। लाइक एक रूम में सपोज करो एक हम 5 वॉट का बल्ब लेते हैं और एक 12 वॉट का एलईडी बल्ब लेते हैं, तो 5 वॉट के बल्ब की जो इंटेंसिटी है वो लो होती है और 8 वॉट के बल्ब की इंटेंसिटी हाई होती है। क्लियर, तो इंटेंसिटी चेंज करने का मतलब जो इल्यूमिनेशन रीजन है या ब्राइटनेस है उसको चेंज करना। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी चेंज करने का मीनिंग क्या है, जैसे मैं अगर विजिबल रेंज की बात करूं, विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, तो फ्रीक्वेंसी चेंज अगर हम कर रहे हैं मतलब हम कलर्स चेंज कर रहे हैं या वेवलेंथ चेंज कर रहे हैं। क्लियर, क्योंकि कलर्स, डिफरेंट कलर्स की तुम्हें पता है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है या डिफरेंट वेवलेंथ होती है। व्हेन वी मूव फ्रॉम रेड टू वायलेट द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, रेड से वॉयलेट जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, और इसलिए वॉयलेट के जस्ट ऊपर अल्ट्रा वॉयलेट होती है यूवी, जिसकी फ्रीक्वेंसी वॉयलेट से भी हाई होगी। और वॉयलेट हमारे लिए थोड़ा सा हार्मफुल होती है, अल्ट्रा वॉयलेट भी हार्मफुल है ना, जैसे जो ओजोन लेयर उसको ऑब्स्ट्रक्ट करती है या एब्जॉर्ब करती है, सिमिलरली वॉयलेट रेडिएशंस भी हमारे लिए हार्मफुल होती है। इसीलिए कई बार मोबाइल में भी एक सेटिंग होती है ना, ब्लू लाइट को कम करना, वॉयलेट लाइट की इंटेंसिटी को कम करना, जिससे कि आंखों पे इफेक्ट कम पड़े। तो ऐसे हम उसको स्क्रीन से हमारी आईज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द ब्लू कलर और वॉयलेट कलर।
ऑफ द लाइट रेडिएशन, उसको अगर हम येलोइश कर देते हैं अगर स्क्रीन को, तो वो हमारे आईज पर इतना इफेक्ट नहीं डालते, क्योंकि जो येलो कलर है वो एक मीन कलर होता है, वो हम रिलैक्स मोड में उसको हम ये रीडिंग मोड में भी उसको हम यूज ले सकते हैं, ओके, स्क्रीन को। सो यहाँ हम जब बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की, तो वी आर चेंजिंग द कलर्स फॉर विजिबल, बट एक्सरे और अल्ट्रावायलेट में भी उस फ्रीक्वेंसी का मीनिंग कुछ ऐसा है। इंटेंसिटी की बात करें तो ब्राइटनेस को चेंज कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस यानी हम बैटरी के वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, क्लियर, और करंट अगर चेंज हो रही है यानी कि वहां अमाउंट ऑफ चार्ज चेंज हो रहा है जो इस वायर में या इस एमीटर में फ्लो करेगा, तो अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम को हम करंट से डिफाइन करते हैं। तो इसका जो बेसिक मीनिंग है वो भी अपने माइंड में रखना कि इंटेंसिटी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, क्लियर। सो फोटो करंट को जब हम ड्रॉ करते हैं इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के साथ, तो इस सिचुएशन में वी विल kept the frequency and the potential difference constant, clear, we will kept here, we kept frequency and potential difference between anode and cathode, we can say we draw the curve current versus intensity, then the curve obtained is like this, straight line curve we obtain. When intensity is 0, current will be 0, and when we increase the intensity, current also increases linearly, clear। सो अब ये वेरिएशन एक्चुअल में क्यों होता है, मैं यहाँ केवल अभी रिजल्ट्स को फोकस करूंगा, उन रिजल्ट्स का एक्सप्लेनेशन हम क्वांटम मैकेनिक्स से या आइंस्टाइन की इक्वेशन से प्रोवाइड करेंगे। सो हियर आई एम जस्ट गिविंग यू व्हाट आर द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, क्लियर। सो इन दिस केस वी कैन राइट एज इंटेंसिटी इंक्रीज द फोटो करंट को आई से लिख रहा हूं, माइक्रो एम्पियर में होगी ये ऑब्वियसली, तो फोटो करंट आई या करंट आई इंक्रीजेस लीनियरली एज शोन, क्लियर, एज वी इंक्रीज द इंटेंसिटी करंट आल्सो इंक्रीजेस लीनियरली एज शोन, बट यहां ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखना है, वो चेंज नहीं होने चाहिए। So that is the first experimental result, photocurrent versus the intensity of the radiation. Now the second one, second curve which we are going to draw is in between the photocurrent and the potential difference, और उसके रिगार्डिंग हम दो और उसके सब कर्व भी ड्रॉ करेंगे, क्लियर। सो द सेकंड कर्व, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। The second result is potential difference versus current, and in this curve we kept the frequency and intensity of radiation constant। इनिशियली मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि मैं कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट इंटेंसिटी पर, यानी हमने यहाँ जो रेडिएशंस इंसिडेंट की है ना, उन रेडिएशंस की ना तो हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं ना हम इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं, they are kept constant, we are only changing this potential difference, v को चेंज करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग करंट को नोट करेंगे, ओके, जो फोटो करंट है माइक्रो एम्पियर में। और पोटेंशियल भी कैसे चेंज होगा, बाय शिफ्टिंग दिस अपर टर्मिनल ऑफ द रियोस्टेट, क्लियर। इस रियोस्टेट के अपर टर्मिनल को हम डिस्प्लेस्ड करके या अपनी पोजीशन पर कहीं शिफ्ट करके वी कैन चेंज द वोल्टेज। So this voltage is changed and hence the current is also changed, but the variation is not linear here, like it will not follow the Ohm's law, it is non-ohmic, we can say a behavior for current and voltage। तो ये कर्व कैसा होता है उसको हम अगर देखें तो the curve is like this, this is suppose voltage, इस एक्सिस के along में voltage या potential difference कह सकते हो, and here we are taking the current, here current is in microampere and the voltage is in volt,
So this one is the zero potential. At the zero potential we are taking. अब यहाँ जीरो का मीनिंग क्या है, ध्यान देना, एनोड इज एट जीरो पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, यानी विद रिस्पेक्ट टू कैथोड का मीनिंग कैथोड पर जीरो है तो एनोड पर भी जीरो है, यानी वोल्टेज हमने लगाया ही नहीं, बैटरी ऑफ कर दी। इस सिचुएशन में भी हमें यहाँ करंट मिलेगी। ओके, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में व्हेन द एनोड इज एट जीरो पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू कैथोड देन आल्सो वी गेट द करंट। तो यहाँ जो हमें करंट मिलेगी वो करंट, देखो इसका जो वेरिएशन है वो मैं एक बार बता देता हूं। द वेरिएशन इज लाइक दिस, clear? This type of variation is shown by this voltage and current keeping the frequency and intensity constant, clear? ये intensity है INT। so when this voltage is zero the current is non-zero। if we increase the voltage, अब इस रीजन के लिए क्या है, देखो यहाँ पर एनोड इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। इस रीजन में क्या है, एनोड पॉजिटिव है कैथोड के रिस्पेक्ट में। इसको एक्सटेंड कर देता हूं थोड़ा सा। और इस रीजन में क्या हो रहा है, इन दिस रीजन दिस एनोड इज नेगेटिव, ये नेगेटिव वोल्टेज होगा ना, इधर हम जो वैल्यूज लेंगे वो नेगेटिव वैल्यूज होंगी और इधर जो वैल्यूज लेंगे वो पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। एक्स की पॉजिटिव एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्सिस है। सो हियर ए इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड इस रीजन के लिए, क्लियर? तो एनोड और कैथोड यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं इन दिस रीजन। तो एनोड के पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं इन दोनों में। अब होता क्या है, what happens in this case, increases the current also increase at the anode and we get a saturated value of current। Saturated means after that the current will not increase even in increase in the voltage। तो करंट को आप इंक्रीज करते रहो, सॉरी वोल्टेज को इंक्रीज करते रहो, करंट इंक्रीज नहीं होती, एक लिमिट तक करंट इंक्रीज होती है, उसके बाद में वो सैचुरेट हो जाती है। तो उसको हम क्या कहेंगे, करंट इज सैचुरेटेड मींस इट्स वैल्यू विल नॉट इंक्रीज। बट व्हेन वी मेक द ऑल्टरनेटिव, चेंज करेंगे ना। अब यहाँ देखो इस रीजन में आने के लिए मैंने जो अभी टू वे की के टर्मिनल्स को चेंज किया था, क्लियर? जैसे अभी मैंने जो टर्मिनल शो किए थे इस तरह से, एक इधर कनेक्ट होगा और दूसरा ऐसे, ये कनेक्शन करेंगे फॉर दिस रीजन या फॉर दिस कर्व। तो इस कर्व के लिए हम नेगेटिव कर देते हैं एनोड को विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, एंड if we increase this negative voltage then current decreases and at a particular negative voltage it becomes zero, and this voltage is denoted by VO and it is called stopping or the cutoff voltage, clear? इसको stopping voltage या stopping potential difference या cutoff voltage कह सकते हो, clear? Cutoff means when the current in the circuit becomes zero or cutoff or stop, clear? तो एक ऐसा वोल्टेज, नेगेटिव वोल्टेज ऑन दिस एनोड, ये एनोड का वोल्टेज है विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, यानी उसको जीरो पोटेंशियल पे ले रहे हो। तो उस सिचुएशन में इसका जो वोल्टेज होगा वो कितना हम रखें जिससे कि करंट जीरो हो जाए, दैट इज कॉल्ड द स्टॉपिंग पोटेंशियल। इट इज यूज्ड टू स्टॉप द करंट थ्रू द सर्किट। ओके, सो नोट डाउन दिस वेरिएशन। अभी हम केवल वेरिएशंस की बात कर रहे हैं, व्हाई दिस हैपनिंग, व्हाई दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल अचीव्ड, और व्हाई दिस करंट इज सैचुरेटेड एंड व्हाई इट शोज द करंट इवन एट द जीरो पोटेंशियल, वी विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन or with the help of Einstein's postulates, clear? So wait for this, still you can write this explanation of this experimental result. So here you can write nu and intensity constant, दोनों को हमने कांस्टेंट रखा है इस रीजन में। The variation is shown in curve here as, इसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं शॉर्ट में, as V increases with A positive, A को हम पॉजिटिव कर रहे हैं, A पॉजिटिव के साथ ले रहे हैं, यानी इधर वाले रीजन में I increase and becomes saturated
if V increase with A नेगेटिव यानी एनोड को अगर हम नेगेटिव कर दें, इस रीजन में आ गए हम, देन करंट डिक्रीज and becomes zero at a voltage called stopping or cutoff voltage, called stopping or cutoff voltage. Clear? So in short, we can write the introduction or this variation of this curve, voltage versus current, for constant frequency and constant intensity. Okay, so take the screenshot. Now the next we will define two sub cases of the same variation, voltage versus current. And first case we will keep the frequency constant and vary the intensity. And in the second case we will keep the intensity constant and vary the frequency. So how the curve will vary, and various curve, 2 or 3 curve we will draw in the on the same voltage versus current curve. So their variations is like this. इसको मैं एक टेबल बना के बता देता हूँ. ये है, इसी का दो सब केसेस है. Here the sub cases for the these two cases, this single case. The part A, when frequency constant and intensity variable. Second, with varying intensity we can say frequency constant and varying intensity. और second part हम करेंगे when intensity constant and frequency variable. So in these two situations, the curves obtained are the first one curve. Here the current and here it is voltage. The curves obtained are frequency constant है, stopping potential same रहेगा. The stopping potential will remain same, but the saturation value of current will change. ये जो current की value हमें मिल रही है, ये यहाँ पर change होगी. The saturation current will change. So this is for suppose intensity 1, this one is for intensity 2, this one is for intensity 3. So and this stopping potential V naught is constant. Clear? इसको हम अभी लैंग्वेज में लिख लेंगे थोड़ा सा. And in this reason या in this case, when the frequency is variable and intensity kept constant, this is current and this is the voltage. So in this situation, the stopping potential vary, but the saturation value of current remains constant. Stopping potential will vary. This one is the stopping potential, the third one is like this, and so on. So this is VO1, this one is VO2 with negative sign. We can say here also we can say this is negative, क्योंकि voltage negative होगा ना, zero के इधर है left में ये. And this one is VO3 with negative sign, and here it is constant, current is constant, or we can say saturation value of current is constant. And this is for frequency like nu1, this is nu2, and this is for nu3. Here in this curve, the intensity 1 is greater than intensity 2 is greater than intensity 3. जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतनी ज्यादा करंट की सैचुरेटेड वैल्यू, और जितनी कम इंटेंसिटी उतनी कम करंट की सैचुरेटेड वैल्यू. ये इसको सैचुरेटेड वैल्यू ऑफ करंट कह सकते हो. हियर फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पर nu3 सबसे
सबसे हाईएस्ट है, न्यू2 उससे कम और न्यू1 उससे कम। फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी कम करोगे स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगा, बट सैचुरेटेड वैल्यू ऑफ करंट रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर? तो इसको एक बार लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देते हैं। व्हेन इंटेंसिटी इंक्रीज देन saturation value of I decrease. Saturation value of I means current और intensity को मैं पूरा लिख रहा हूँ, सॉरी, saturation value of current also increase, intensity increase होगी तो current भी increase होगी। क्लियर? but stopping potential remains constant or we can say same. In this situation what will happen? When frequency increase, जब हम frequency को increase करते हैं, frequency increase, then the stopping potential increases, but the saturation current, saturation का मीनिंग होता है मैक्सिमम वैल्यू अटेन करना, that is the saturated. So saturation current remains constant. Clear? Here we are only discussing the results. Explanation उसका बाद में देंगे, मैं फिर कह रहा हूँ ऐसा क्यों होता है. We will explain with the help of Einstein's postulates and Einstein's photoelectric equation. Okay, so take the screenshot. So write a note here. At stopping potential, the electrons of maximum kinetic energy are stopped. Clear? Electrons of maximum kinetic energies are stopped by the stopping potential. Look, in this diagram, if we make this anode negative with respect to cathode, अगर हम एनोड को नेगेटिव करें तो क्या होगा उस सिचुएशन में, ये रिपेल करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो इट विल स्टार्ट रिपेलिंग द इलेक्ट्रॉन एंड किस तरह के इलेक्ट्रॉन, यानी जिसकी एनर्जी सबसे कम है वो तो पहले ही रुक जाएंगे, जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम है. अब इलेक्ट्रॉन जब इमिट होते हैं ना मेटल सरफेस से, उनकी काइनेटिक एनर्जीज डिफरेंट होती है. दे ऑल आर, क्योंकि वो अलग अलग डेप्थ से आते हैं, अलग अलग प्लेसेस से आते हैं विद इन द मेटल, सो देयर काइनेटिक एनर्जीज आर डिफरेंट. So they have different kinetic energies for different electron. तो in this situation what happens, अगर हम करंट का अगर वो वेरिएशन वापस से देखें, करंट वर्सेस वोल्टेज, तो इस पोजीशन पे जब हमने इसको नेगेटिव कर दिया, इस रीजन में हम जा रहे हैं, तो मोर एंड मोर नेगेटिव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स आर स्टॉप which are having increasing order of kinetic energy. लाइक सपोज करो फॉर एग्जाम्पल, मैं स्टैंडर्ड डेटा नहीं है, मैं इसे समझाने के लिए एक डेटा ले रहा हूँ कि सपोज इलेक्ट्रॉन्स की जो वेरियस इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं उनकी एनर्जी है लाइक 10 जूल, 15 जूल, 20 जूल, 5 जूल, 25, मान लो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 5 है सपोज फॉर एग्जाम्पल. तो क्या होगा व्हेन वी मेक दिस एनोड एट सपोज -5 वोल्ट, तो 5 जूल वाले इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करेगा जिनकी काइनेटिक एनर्जी 5 जूल. अगर हम और रिमेनिंग जो होंगे 10 जूल, 15 जूल, वो सब एनोड पे पहुंचेंगे. तो फ्यू इलेक्ट्रॉन्स आर स्टॉप्ड हैविंग द काइनेटिक एनर्जी 5 जूल, सो दैट्स व्हाई द करंट डिक्रीजेस, करंट की वैल्यू कम हो जाती है. सम इलेक्ट्रॉन्स आर स्टॉप्ड बाय दिस नेगेटिव पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन. नेगेटिव है वो और ये इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिव है. अभी मैं वो कंडीशन ले रहा हूँ जहाँ इस रीजन की हम बात कर रहे हैं, तो ये टर्मिनल्स भी जो होंगे ना वो इधर शिफ्ट होंगे, दे विल बी कनेक्टेड लाइक दिस. सिर्फ समझ लेना इसको, लैंग्वेज में हमने यहाँ पर लिख दिया है कि ये क्यों होता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन स्टॉपिंग पोटेंशियल पर स्टॉप होते हैं.
सिमिलरली नाउ सपोज हमने इसको -10 कर दिया, तो 10 जूल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी 10 जूल है, दे विल बी स्टॉप. Similarly, the electrons, suppose it is -15, तो 15 जूल वाले, तो मान लो सपोज कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 30 जूल है, तो 30 जूल एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को कब हम स्टॉप कर पाएंगे, जब हम सपोज -30 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा रहे. मैं ये जो डेटा है न्यूमेरिक वैल्यूज पे मत जाना, मीनिंग समझना. ये स्टैंडर्ड नहीं है, एक्चुअल में ऐसा वेरिएशन नहीं होगा कि जितना इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जिस नंबर में है उतना ही हम स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा रहे हैं. दैट इज नॉट ट्रू, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना कि इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग विद वेरियस वेलोसिटीज. Clear? Electrons are coming with various velocity or kinetic energy, and if we make the anode more and more negative, then what happen, the electrons जिनकी energies बढ़ रही है ऑर्डर में, उन सभी को स्टॉप करेगा. And at the stopping potential, the last electrons will be stopped which are having the maximum kinetic energy. क्लियर? जिनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर स्टॉप होंगे. तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा है कि एट द स्टॉपिंग पोटेंशियल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जीज आर स्टॉप. अब इस पोटेंशियल को जो VO है उसको वर्क डन कितना करना पड़ेगा, अगर हम वर्क डन की बात करें, क्योंकि वो एनर्जी है उसी के इक्विवेलेंट वर्क डन करना पड़ेगा. वर्क एनर्जी थ्योरम अगर हम यहाँ लगाएं तो वर्क डन बाय दिस नेगेटिव पोटेंशियल विल बी इक्वल्स टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तो वर्क डन की एक्सप्रेशन अगर लिखें, पोटेंशियल अगर VO है या V0 है तो इलेक्ट्रॉन को स्टॉप कर रहा है ना, तो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस को हम वर्क डन से रिप्रेजेंट करते हैं. तो EV0, दिस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी EV0. इसको हम इक्वेट कर सकते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को अगर हमारे पास में स्टॉपिंग पोटेंशियल VO है या V0 है. तो इन दिस सिचुएशन वी कैन राइट stopping potential electron. If VO is stopping potential and half mv square is maximum kinetic energy, then एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन से लिख रहे हैं, दिस हाफ mv max square is equals to EV0. Remember this relation between the potential difference versus energy. काइनेटिक एनर्जी को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल के चार्ज के साथ प्रोडक्ट के इक्वल कर सकते हैं, बिकॉज चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन. सेकेंड चैप्टर में हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी, वर्क डन अपॉन चार्ज इज पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, सो दिस चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन, एंड दिस वर्क डन बाय द एनोड on the electrons will be equals to the kinetic energy of this electron, maximum kinetic energy of the electron. क्लियर? इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को थोड़ा सा विजुअलाइजेशन की पावर से समझने की कोशिश करना, कि इमेजिन करना कि सपोज तुम जिस रूम में हो वहाँ दो वॉल्स है, एक वॉल एनोड कैथोड है, दूसरी वॉल एनोड है. कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं जब हम उन पे लाइट को या एक्सरेज को इंसिडेंट कर रहे हैं, है ना. सपोज लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं तो इमेजिन हम कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, और सेकेंड वॉल का पॉजिटिव पोटेंशियल है तो वो कलेक्ट करेगा, या जीरो पोटेंशियल है तब भी कलेक्ट करेगा. क्यों करेगा? जीरो पोटेंशियल पे करंट क्यों मिल रही है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की इतनी एनर्जी है कि जीरो पोटेंशियल एनोड पर होने के बावजूद दे कलेक्टेड बाय द एनोड. एनर्जी है ना, तो चलेंगे तो वहां कलेक्ट होंगे तो करंट मिल जाएगी आपको. क्लियर? तो दे विल द करंट विल बी देयर इन केस ऑफ जीरो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड. क्लियर? तो इस तरह से इसको विजुअलाइज करके समझना कि इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो अलग अलग एनर्जी के हैं, तो उसको हम मोर एंड मोर नेगेटिव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा रुक रहे हैं. जब स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा तब दोज इलेक्ट्रॉन्स विल बी स्टॉप हैविंग द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. क्लियर? और उसी से हमने यहाँ पर ये रिलेशन लिखी है, हाफ mv max स्क्वायर इक्वल्स टू EV0. नाउ द नेक्स्ट कर्व, कल हमने टू केसेस किए थे. फर्स्ट इंटेंसिटी वर्सेस दिस फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी वर्सेस करंट, और सेकंड पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट. तो VI में और इंटेंसिटी और I में ये दो कर्व हमने ड्रॉ किए. VI के मैंने दो स्पेशल केसेस बताए थे
कि जब हम फ्रीक्वेंसी वेरी करते हैं आई को कांस्टेंट रख के और आई को वेरी करते हैं फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रख के, तो क्या चेंजेस होते हैं। तो अब हम थर्ड नेक्स्ट केस लेते हैं। देखो कल जो हमने केस जो हमने किया था प्रीवियस, वो क्या था कि इफ वी वेरी द फ्रीक्वेंसी then the current maximum value remains constant but the stopping potential increases. This is I, this is V, this is for nu1, nu2 and nu3, and from this curve if we draw the curve between this stopping potential versus frequency, then the curve obtained is a straight line. Clear? From this curve we see that third curve यहाँ पे draw करो, curve between stopping potential versus frequency. Okay, so this curve is a straight line. This curve is basically straight line. कुछ इस तरह का ये कर्व मिलता है हमें. Here we are taking stopping potential and here on this x-axis we are taking the frequency. Clear? So the curve is like this. It is the straight line intersecting on both the axes, and if we draw this line for different or various metals, then the line is like this. Clear? This is the straight y-axis. So this one is nu naught 1, this one is nu naught 2. ये frequency है, ध्यान रखना, it is not the potential, ये frequency axis है, तो इसको हम potential नहीं कह रहे. ये nu naught 1, nu naught 2, and these lines are drawn for different metals like metal 1 and this is for metal 2. So as we seen from this curve V versus I, that as we increase the frequency the stopping potential increases. Similarly here we draw the curve stopping potential versus frequency and this is the straight line. Clear? And here we are keeping the intensity constant. Remember intensity को constant रखा है. अब different metals के लिए जो variation आता है ये कुछ इस तरह का आता है, और ये जो frequency axis पर intersect करती है इसको हम बोलते हैं threshold frequency. The name of this nu naught is threshold frequency. Okay, what is the meaning of threshold frequency? देखो suppose करो जब यहाँ हम कहें कि ये frequency जब nu naught होगी तो उस समय stopping potential क्या होगा? Zero होगा. Clear? When the frequency is nu naught, then stopping potential is zero. Means stopping potential zero means कि zero potential पे भी current आपको zero मिलेगी. समझे? जीरो पोटेंशियल पे भी करंट हमें जीरो मिलेगी, और जीरो पोटेंशियल पे करंट जीरो है मतलब इलेक्ट्रॉन इमिट तो हुआ लेकिन वो चला नहीं. मींस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो जीरो, बिकॉज इस रिलेशन से V नॉट को अगर मैं जीरो कर देता हूँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो है ना इस फ्रीक्वेंसी पे, तो V नॉट को जीरो कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो. मींस इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट मूविंग, या इलेक्ट्रॉन डू नॉट हैव द काइनेटिक एनर्जी. Okay, but the electrons are emitting they are coming out, liberating from that metal surface. Or if the frequency is less than nu naught, then what will happen? The electron will not emit. Okay, the electron will not liberate it from the metal surface. So that's why this is called the threshold frequency. क्लियर? इसको हम वो फ्रीक्वेंसी, और सपोज करो कि हम इसको वैल्यू को इंक्रीज करें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है. अगेन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर अगर जाते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है. इट मींस इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और उनको हमें रोकने के लिए कुछ नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ रहा है. समझ गए? इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं यानी फ्रीक्वेंसी अगर हाई करते हैं, न्यू नॉट से हाई कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स विल हैव काइनेटिक एनर्जी एज वेल. So we have to apply some negative potential to stop them. Clear? So in this situation, from this curve we can say that the minimum frequency is required for the electromagnetic radiation for the emission of this photoelectron, and this minimum frequency is called the threshold frequency.
and it is also one of the important result of this photoelectric effect, that it does not take place on every possible frequencies, like the frequency of radio waves, frequency of microwave, frequency of this infrared, इन सब पे नहीं होगा. They start from the visible for the metals like lithium, potassium or sodium etc. Clear. And for the normal metals, जो hard metals होते हैं जिसमें हम आयरन को, कॉपर या इस तरह के मेटल्स की हम बात करते हैं, तो वहाँ ये अल्ट्रा वायलेट से स्टार्ट होता है. क्लियर. तो अल्ट्रा वायलेट रेंज में वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लाई करती है. क्लियर. तो हम एक बार कंक्लूड करते हैं, इसको नोट करते हैं. सो राइट डाउन अबाउट दिस कर्व वी हैव ऑलरेडी ड्रॉन. सो मैं इसको यहां से मूव कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं. The curve obtained is shown. The curve obtained is straight line intersecting both axes. ठीक है, both axes, ES होगा यहाँ, both axes. The frequency nu naught where stopping potential या V naught is 0 is called threshold frequency. Is called threshold frequency. At frequency nu naught, kinetic energy of electrons are 0. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इस केस में? 0 होगी. तो इफ दे डू नॉट हैव द काइनेटिक एनर्जी, इट मीन्स दे आर स्टॉप्ड एट द जीरो पोटेंशियल. Clear. No potential is required. Yeah, stopping potential is required to stop those electrons. Electrons कोई तो stop करता है, stopping potential, इसीलिए हम उसका name stopping potential दे रहे हैं. So the threshold frequency at frequency nu naught, kinetic energy will be 0. It means that is electrons just liberated. Electrons just liberated from matter. If the frequency nu is less than nu naught, then photoelectric effect does not take place, and if it is more than this, then it will easily, electron will also have some kinetic energy. So this is the concept of threshold frequency which we obtain from this curve, stopping potential versus frequency. For different metals, these lines are parallel to each other as shown. And you know already that for different metal the work function is different. Okay, so nu naught 1 is the work function for metal 1, nu naught 2 is the work function for metal 2, etc. So this work function basically depends on the threshold frequency. वर्क फंक्शन डिपेंड करेगा प्लस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी करेगी ना. तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज आल्सो डिपेंड्स ऑन द काइंड और नेचर ऑफ द मैटर, लाइक वर्क फंक्शन. इसी एक्चुअल में वर्क फंक्शन को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की टर्म में ही रिप्रेजेंट करें. दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जितना वर्क फंक्शन होगा उसी के प्रोपोर्शनल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी. तो एक इसको मैं अलग पॉइंट लगा के लिख पाऊंगा 4th पॉइंट में. सो टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट. The 4th point is the minimum frequency at which photoelectric effect, शॉर्ट में लिख रहा हूं TEE, starts. ठीक है, स्टार्ट होता है, इसका मीनिंग है कि
above those frequencies the photoelectric emission will take place, but below that it will not take place. Clear? So the minimum frequency at which photoelectric effect starts is called threshold frequency, and this at all possible frequencies, हर possible frequency पर possible नहीं होता, at all possible frequencies. And it is also an important result of photoelectric effect which was experimentally observed कि रेडियो पर, माइक्रो पर, इंफ्रारेड पर photoelectric effect observe नहीं होता. Clear? This threshold frequency lies in visible range for sodium, potassium, lithium, cesium, etc. and in UV range, अल्ट्रावायलेट रेंज. हमें पता है फ्रीक्वेंसी रेंज इनकी क्या होती है, हमने 8th चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इनको डिस्कस किया है. ओके, सो यूवी रेंज या अल्ट्रावायलेट रेंज के अंदर फॉर कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, आयरन एटसेट्रा, तो ये जो मेटल्स होती हैं ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पर इनमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है. So this is the 4th point. The 5th point and the last point for this experimental result is the time lag. Actually, the time lag between the incidence of the radiation and the emission of electrons, photoelectrons from the metal is almost negligible or zero. It is having the order nanosecond. 1 nanosecond का order इसका होता है, and this 1 nanosecond can be neglected in our scale time. 1 second के comparison में हम 10 to the power minus 9 second को ignore कर सकते हैं, neglect कर सकते हैं. So it is an instantaneous process, we can say. Okay, yeah, immediate process. As soon as we incident the radiation, the electrons will be emitted from its surface. Okay, तो second point, last point इसमें लिख लो. This photoelectric effect is an instantaneous process. That is, as soon as we incident radiation, the electrons are emitted या liberated immediately. ठीक है, उसी समय इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वहां से लिबरेट हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, एस्केप हो जाते हैं, इमिट हो जाते हैं, whatever you like, you can say. So that is no time lag. The time lag ऐसे लिख सकते हैं, the time lag is having order 1 nanosecond, 10 to the power minus 9 second. क्लियर? ऑर्डर बता रहा हूं मैं, तो ये हमारे 1 सेकेंड की स्केल पर या हमारे लिए नेग्लिजिबल है, इसलिए हम कहते हैं कि दिस फिनोमेना इज इंस्टेंटेनियस. So these 5 are the experimental results of this photoelectric effect. Now we first discuss the failure of the classical wave theory. To explain all these results, what are the main postulates of the wave theory and where they are contradicted in these curves or these statements. Okay, so first we discuss them, and then after we will discuss about the Einstein's theory of photoelectric effect. And we will give some postulates given by the Einstein, and then the photoelectric equation we will explain. So take the screenshot before that fast.